founder promoter of UDS. I'll give you a quick brief and on the company and the journey. After that, I want Amitabh to take over and give you details about the business itself. Like what Ramit said, it started off in 1990 as a single service provider. One second, Mr. In 1990, we had just one service or two services. The idea was to build it into an integrated facilities management business where we could offer more than one service. When we say integrated facilities management, it means all services a facility requires. It could be soft services, hard services, engineering services, support services, the entire facility. So from 90, it took us some time to build size. By mid-90s, we had built size. We had a full portfolio of services, and we had gone pan-India. When we say pan-India, across all states of the country, 4,000 odd locations we give this service. And now Ahmedabad is very special for us. We do a very unique hospital here, probably one of in the country. It's called the Sardar Vallabhbhai Patel Multi-Speciality. We do the complete hospital, running the hospital. The government has only doctors, right from the medical superintendent to nurses, to paramedics, to technicians, to the lab, to the ambulance. The entire hospital is run by us. Last 3 years we've been running it, and it's unique because I don't think clinical services has ever been outsourced. It's only the cleaning or electrical, plumbing, engineering is outsourced. This is probably the only hospital in the country where complete clinical services are outsourced. We have close to about 2,000 people working in that hospital alone. Just to give you an idea, like the presence where we are. Based out of Chennai, but most of our business is in the north and the west. So this is what we are. And over last 6-7 years, even though we did our first acquisition in 2007, which Amitabh will take over on the business services, we started building a business service platform. Idea was to build niche business service platform where when I go to the customer, we could offer more than one service. And more importantly, the business services are much more profitable than the facilities management. The facilities management is basically a scale game. Margins are single digit, 5.5%, whereas your business services is in the range of 15 to 18%. Hence, we moved into business services. And also, I need to make a small correction here. Praveen said we are the second largest in terms of facilities management, or third largest. We consider ourselves as the largest. When I started this business, I was the largest, or I was the single leader because there was nobody else. Today we still happen to be leaders after 30 years. So that's what we are. But the industry report says that we are number 2. The number 1, I don't want to compare because they basically do government businesses. We have only one government business, which is this hospital in Ahmedabad. So basically we are into the corporate, we don't take government because it's a different ballgame for us. So the business services platform start building. We have basically 3-4 lines of business which Amitabh will take over and tell you on the business services. So this is basically the company. I would invite Amitabh to please take over. So आज ये जो कंपनी है ऑपरेटर सर्विसेज, इसके 2 भाग हैं. एक मेन भाग है IFM, which is called इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज, सो IFM. सेकेंड पार्ट जो है, दूसरा भाग जो है वो है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, BSS, राइट. तो ये जो IFM पार्ट है, इसके और अलग अलग क्या क्या भाग हैं वो आपको बताता हूँ इसके 2 मिनट में. और तो ये 2 मेन चीजें हैं जहां आप देख रहे हैं, IFM एंड BSS. थोड़ा सा अगर रिवाइंड करते हैं तो 1990 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद में 2006 में फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में इस कंपनी में भी न्यू वर्नॉन कैपिटल नाम की एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी थी, उसने इन्वेस्ट किया था. सो ये फर्स्ट टाइम था कि इस इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल किसी ने इन्वेस्ट किया, राइट. उसके बाद में ICICI वेंचर्स आई, एंड ICICI वेंचर्स के बाद में अब जो है मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी है इस कंपनी में. 17% उनका आज शेयर है कैपिटल में.
सो ये तीन जो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं, इन्होंने इस कंपनी को ठीक से देखा है, समझा है, इसके बिजनेस मॉडल को, इसके प्रमोटर को, इसकी टीम पे विश्वास था, तभी इतना इन्वेस्टमेंट हुआ था इस कंपनी में, राइट। एंड लास्ट 14 साल से इस कंपनी के जो ऑडिट्स और जो ऑडिटर्स हैं वो बिग 4 ऑडिटर्स हैं। लास्ट 10 साल से EY है और उसके पहले KPMG थे। तो KPMG ने 4 साल ऑडिट किया एंड लास्ट 10 साल से EY ऑडिट कर रहा है हमारी बुक्स को। सो दैट्स जस्ट एज अ मैटर ऑफ एज अ मैटर ऑफ गवर्नेंस कि हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको बता रहा था। ओवरऑल अगर आज ये कंपनी को देखेंगे तो करीब FY23 विच इज द लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर दैट वी हैव हैड, 2100 crores is the revenue of the company, and if you look at the EBITDA margins, करीब 7% EBITDA margin है कंपनी का, 6.9% is the EBITDA margin of the company। लेकिन जो अहम नंबर है जो आप सब एनीवे समझते हैं, वो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे जो नंबर है विच इज द ROCE, विच इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपना 24% का ROCE है। तो इस इंडस्ट्री में दिस इज क्लियरली द हाईएस्ट ROCE ऑफ एनी कंपनी दैट इज देयर, एंड वी विल शो यू। मैं आपको एक जिसका जो पूरा कंपैरिजन है बाकी कंपनीज के साथ में वो आपको मैं दिखाऊंगा इसके बाद में, राइट। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट अहम नंबर है वो राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो जो डेट इक्विटी नंबर है 0.03 का नंबर, विच बेसिकली मीन्स कि अपने कंपनी में कोई डेट नहीं है, नेट डेट नहीं है। 174 करोड़ का 174 करोड़ का ग्रॉस डेट है, लेकिन अपने पास जो कंपनी में जो बाकी सब्सिडियरीज हैं और मेन कंपनी जो है उसमें कैश बैलेंसेस भी हैं। तो कैश बैलेंसेस आर 162 करोड़। सो अगर आप नेट डेट देखेंगे तो खाली 12 करोड़ का नेट डेट है। सो ये जितने हमने एक्विजिशंस करे हैं, जितनी हमारी जो एक्सपांशन हुई है कंपनी की, वो सब सेल्फ जनरेटेड कैश से हुई है। मतलब कंपनी इज कैश जनरेटिंग एंड जनरेट्स अ लॉट ऑफ कैश, राइट। सो दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट वी आर। ओवरऑल साइज एंड स्केल अगर देखेंगे तो करीब 4500 लोकेशंस पे आज हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब भारत में कहीं पे भी अगर कोई कस्टमर है उसको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम दे सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल ओवर दी कंट्री। 4500 लोकेशन ऑलरेडी हैं हमारे पास में और करीब 125 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं। मतलब वहाँ पे हमारे आदमी खुद हैं, ऑफिसेज हैं 125 जगह पे फॉर द एंटायर कंपनी, एंड करीब 65,000 लोग काम करते हैं कंपनी में। तो ये जो है एक स्नैपशॉट है, एक समरी है कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी का क्या साइज है और कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसका एक स्नैपशॉट है। ये स्लाइड तो रघु ने ऑलरेडी आपको बताया इसके बारे में कि हमारी क्या जर्नी थी कि 1990 में स्टार्ट हुई और आज के दिन में, राइट। हमने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं कंपनी के जो लास्ट 35 साल की हिस्ट्री में, और उसके बारे में मैं आपको और थोड़ा विस्तार से थोड़ा आपको इसके बाद में बताता हूँ। ये जो सर्विसेज हैं ये इसकी मार्जिन ज़्यादा है, इसके रिटर्न्स बेटर हैं और इसका जो काम है ये वैल्यू एडेड काम है। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोविजन ऑफ लेबर बट इट्स मोर वैल्यू एडेड वर्क, राइट। सो दैट इज द चेंज इन द कंपनी दैट हैज हैपेंड। वो आप देख रहे हैं वहाँ पे कि FY21 में वी हैड 90% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम IFM एंड नाउ इन FY23 वी हैव ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूशन। तो घट रहा है, IFM का जो कंट्रीब्यूशन है वो घट रहा है, BSS का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, राइट। ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी बिकॉज ऑफ दिस, आप जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी अगर आप राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ वाले स्लाइड पे देखेंगे तो वो भी क्लियरली दिखता है कि अपना जो मार्जिन है वो 5% 6% था अपना FY21 में, क्लियरली नाउ इट हैज गॉन अप बाय 1 full percentage point। सो 5.95% से आज ऑलमोस्ट 7% पे अपना EBITDA का परसेंटेज जो है वो है, राइट। सो एंड डेट इक्विटी रेशियो हैज रिमेन्ड द सेम। सो डेट इक्विटी रेशियो पहले डेट अपना वैसे भी नहीं था, FY21 में भी नहीं था, 21 में भी नहीं था, 23 में भी नहीं है, राइट। सो ये जो जितना भी जो एक्टिविटी हुई है, जो भी हमारी एक्विजिशन की एक्टिविटी हुई है, जो भी मर्जर एंड एक्विजिशन हमने करा है, सारी की सारी एक्टिविटी जो है सेल्फ जनरेटेड कैश है, राइट। एंड ROCE भी अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन यू एक्वायर अ कंपनी, जब आप कंपनी खरीदते हैं तो ROCE गिरता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ROCE FY21 में भी 26 था, आज भी 24 है। सो इट्स अ बेसिकली द मैसेज इज कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है दैट इज क्वाइट हाई, दैट्स द सेंट्रल मैसेज है, राइट। वेरी क्विकली आई विल टेक यू थ्रू व्हाट वी डू, कि हम करते क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो अथीना ये करती है। डिनेव इज अनदर कंपाउंड हैंडलिंग में बेसिकली जैसे जब एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट आती है
और जब तक फ्लाइट वापस टेक ऑफ करती है उसके बीच में जितनी सर्विसेज होती हैं, मतलब जो लैडर लगती है जैसे कि राइट बैगेज मूवमेंट होता है, एयरक्राफ्ट को जो पुश बैक करते हैं वो है, एयरपोर्ट जब एयरक्राफ्ट जमीन पे होता है तो उसको जो पावर देना होता है या जो एयर कंडीशनिंग सर्विसेज देते हैं, उस तरह की सारी सर्विसेज हम करते हैं, राइट। तो दिस इज एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग। ये जो बिजनेस है ये करीब 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया था एंड पूना इज फुल्ली फंक्शनल नाउ, इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो हम हैंडल करते हैं एंड दैट इज नाउ प्रॉफिटेबल एज वेल। इनफैक्ट नॉट ओनली डिड इट रीच ब्रेक इवन बट इट्स नाउ प्रॉफिटेबल। एंड जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहे हैं। पटना स्टार्ट हो गया है, वाइजैक एंड रायपुर हैव आल्सो स्टार्टेड फॉर चार्टर ऑपरेशंस, सूरत विल स्टार्ट सोon, right? So that is airport ground handling, right? That is the other business that we have. And ये airport ground handling का जो concession है, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बिडिंग प्रोसेस किया था, उस बिड प्रोसेस में हमने पार्टिसिपेट किया और हम ये जीते ये एयरपोर्ट्स, और ये 10 साल का कंसेशन होता है। सो 10 साल तक वी हैव द राइट टू ऑफर दिस सर्विसेज टू द एयरलाइंस, राइट। तीसरा है एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ये एक सिंपल बिजनेस है कि जैसे आईटी कंपनीज हो गई या बैंक्स हो गई या कोई भी बीएफएसआई कंपनी हो गई, ये कंपनीज जब किसी को भी हायर करते हैं तब उनको ये चेक करना होता है कि ये आदमी जो बोल रहा है अपने सीवी पे, राइट, वो सब बराबर है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमको हायर करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक। तो इसमें हम आइडेंटिटी चेक करते हैं, एड्रेस चेक करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसने जो लिखा है अपने सीवी में कि भाई मैं ये कॉलेज में था, ये मैंने ये कोर्स किया या यहाँ इस स्कूल में था, तो वो सही है या नहीं है। प्लस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, जैसे अगर एम्प्लॉय बोलता है कि मैं इन्फोसिस में 4 साल काम किया मैंने, उसके बाद में मैं विप्रो में था या जो भी है, तो उसके हिसाब से वो भी चेक करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है। तो ये इस तरह के जो एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो करते हैं, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द सर्विस दैट वी डू। This is a profitable business, very profitable business actually. Margins are over 20% in that particular part of the business. जो मैं आपको बता रहा था कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट, उसमें हम करते क्या क्या है, राइट। तो मेन है, एक होता है कि सॉफ्ट सर्विसेज विच इज क्लीनिंग सर्विसेज, राइट। तो एक ये करते हैं। दूसरा है कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज विच इज बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज फॉर बिग बिल्डिंग्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह हैं। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स, ऑलमोस्ट 7 से 9 एयरपोर्ट हम करते हैं आज के दिन में, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग बैंगलोर। इनफैक्ट लास्ट ईयर, अर्लियर दिस ईयर, बैंगलोर एयरपोर्ट से हमको एक 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, राइट। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी डू, right? Similarly, we do other airports. We do many large buildings as well for mechanical, electrical, and plumbing services, right? So this is engineering services. This is more value added than just cleaning services. The third thing, तो तीसरा काम करते हैं इसमें प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, जहाँ हमारे आदमी कस्टमर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ मिलके प्रोडक्शन लाइंस पे काम करते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग हो गया या प्रोडक्ट जो लाइंस हैं उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो हो गया, इस तरह के कई काम जो है हम लोग करते हैं। सो ये अगेन एक वैल्यू एडेड काम है। तो ये 3 चीज मिला के इज व्हाट इज कॉल्ड IFM। इसके अंदर 2-3 और चीज भी करते हैं, वेयरहाउस मैनेजमेंट करते हैं और जनरल स्टाफिंग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि और दूसरी कंपनीज हैं जनरल स्टाफिंग में, क्वेस्ट हो गई या टीम लीड्स हो गई या और दूसरी कंपनीज हैं, है हमारे पास भी वो सर्विस, लेकिन ज़्यादा नहीं करते। सो आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर अपना जो है करीब 200 करोड़ से कम स्टाफिंग का टर्नओवर है, बाकी जो है ऑल वैल्यू एडेड वर्क है, राइट। सो स्टाफिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, बट लेकिन प्रोडक्ट है हमारे पास में, सर्विस है। अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो वी कैन डेफिनेटली गिव इट एंड वी डू गिव इट। द अदर पार्ट इज ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशनल केटरिंग। So that is about 120-130 crores, and this also is something that we do mainly in the south. So the strength जो है institutional catering की वो ज़्यादा करके साउथ में है, but that's the other product that we have. So ये सब मिला के is this thing about integrated facilities management. There's a lot of construction is taking place. ये जो A grade building बनती है तो हमारे जैसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज देयर हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अदर सच टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आल्सो कैन बी सोल्ड ओवर देयर. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सो दैट्स वन थिंग. सेकंड इज कि कस्टमर्स आर प्रिफरिंग लार्जर वेंडर्स. सो छोटे बिजनेसेस को जो पहले जो बिजनेस मतलब जो दे रहे थे वो कि मतलब ठीक है एक फ्लोर कोई कर रहा था, दूसरा फ्लोर कोई कर रहा था, या एक बिल्डिंग कोई कर रहा है, दूसरा बिल्डिंग दूसरी जो बिल्डिंग है वो कोई और कर रहा है,
अब द ट्रेंड इज कि जो लार्जर कंपनीज हैं दे आर सेइंग कि भाई एक आदमी के साथ डील करना है या बड़ी कंपनी के साथ डील करना है, क्योंकि उनका जो गवर्नेंस है, उनकी जो कंप्लायंस है, दैट इज स्ट्रॉन्गर, प्लस दे आर मोर श्योर कि ये लोग जो डिलीवरी है वो कर सकते हैं. सो दैट इज द सेकंड ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन दिस मार्केट प्लेस, राइट. तीसरा ऑफ कोर्स है कि बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड बिकॉज ऑफ अदर लेबर कोड्स अब जो आ गए हैं, बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट, राइट, वी आर सीइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस also consolidation and formalization is taking place in the industry, and ये आप लोग कई और इंडस्ट्रीज में भी आप देख रहे होंगे. So that is the other thing that is happening, which is helping large players like UTS, right? So that is really the message there. Overall, as far as business support services are concerned, this market is also a very large market, and इसमें sales enablement, airport ground handling, etc. are large businesses that are there. And this is just a slide to talk about the fact कि इस market में भी 16 से 17% market growth है. जो IFM मार्केट है वो बड़ा मार्केट है, 1 लाख करोड़ का मार्केट है, बट वहां पे भी 16-17% की ग्रोथ है. BSS मार्केट में भी 16-17% की ग्रोथ है. आवर कंपनी UDS हैज बीन ग्रोइंग फास्टर देन 16-17%, व्हिच वी विल शो यू. राइट, ग्रेट. Now let's just talk about a little bit about the core strengths of this company of UTS, right? ये हमने already देखा कि हमारी जो business range है, this is one strength of the company, one big strength of the company. The second part is the all India presence. तो इंडिया में जैसे like I had mentioned earlier, जैसे पहले बताया था कि पूरे इंडिया में we service almost 5,000 locations, 4,600, 4,700 locations सर्विस करते हैं, 125 points of presence हैं. तो इसके कारण कस्टमर कहीं भी हो भारत में वहाँ पे सर्विस दे सकते हैं, राइट. सो दैट्स द एडवांटेज दैट द कंपनी हैज. सेकंड बिग एडवांटेज. थर्ड इज द फैक्ट कि जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनी का, एक बदलाव आ रहा है कंपनी में फ्रॉम अ प्योर IFM प्लेयर टू अ मोर इंटीग्रेटेड BSS प्लेयर. फर्क क्या पड़ता है इसमें? दो चीज का होता है. एक है कि मार्जिन आर हायर. So in the IFM business, margins are 5% के आसपास. In the BSS segment, margins are 10 to 15%. In fact, 12 to 15% की margins होती हैं. So the margin profile of the company is changing, right? And all of this transformation has been done through internal growth and through internal cash generation, because the debt equity ratio that we keep talking about is 0.03, right? ये दो उदाहरण हैं स्लाइड पे अबाउट कि कंपनी जब हम एक्वायर करते हैं तो एक्वायर करने के बाद में वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे होता है. तो बिकॉज ये कई बार ऐसा होता है कि भाई कंपनी आपने एक्वायर कर ली लेकिन आप चला नहीं पाए या आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए, राइट. तो हमने 3 बड़े एक्विजिशन किए हैं, उसमें से 2 का एग्जांपल यहाँ पे है. अथीना इज लेटेस्ट, अभी नया है तो इसलिए उसका एग्जांपल यहाँ नहीं दिया है. बट अगर ये 2 एग्जांपल आप देखेंगे, मैट्रिक्स एंड डिनेज. मैट्रिक्स का पहले जब एक्वायर किया था तब उसका जो टर्नओवर था वो करीब 60 करोड़ का टर्नओवर था. 2 साल में वो कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ से 120 करोड़ के ऊपर चला गया. 124 करोड़ का टर्नओवर है, राइट. 2 साल में डबल हो गया. एंड मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पहले जो है 6 करोड़ का मार्जिन था, मतलब अबाउट 10% का मार्जिन था उसका, राइट. एंड टुडे इफ यू लुक एट इट, 32 करोड़ का EBITDA उस कंपनी ने दिया, राइट. सो द मार्जिन हैज बिकम ऑलमोस्ट 27-28%.